नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को। आज के परवर्ती प्रश्न নিয়ে এসেছি। आज अलग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। पहले बंगाली में कहूँगी फिर हिंदी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटारेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन আপডেটস। শুরু করছি। এখন আমি বাংলায় বলছি, পরে হিন্দিতে বলছি। প্রথমেই আমরা পাচ্ছি 80 নম্বর কোয়েশ্চেন। অপশন 1 2 3 4 ABCD করে চারটে আছে, আর দেওয়া আছে কোনটা কে লিখেছেন, ম্যাচ দ্য ফলোইং। তো আমি আনসার নিয়ে এসেছি যেরকমটা আনি। শ্যাম অ্যান ইলাস্ট্রেটেড রিটেলিং অফ দ্য ভাগবতা, it is written by Devdatta Pattanayak. Then War, War of Lanka by Amish Tripathi, and Ahalya's Awakening by Kavita Kane, Kane. Ajaya, Epic of the Kaurava Clan by Anand নীলকণ্ঠন। ওকে, সো এটা যে সবগুলো যে আছে লেখা, এগুলো মিথোলজিক্যালের ওপর লেখা। মাইথোলজি যে আমরা বলে থাকি বা মিথোলজি, এই মেইন হলো জনরাটা এই লেখাগুলোর এটাই। আর হচ্ছে যে এগুলোকে আমাদের এরকম থাকে যে মিথোলজি থেকে হোক, ইন্ডিয়ান থেকে হোক, বিভিন্ন ধরনের নাট্যশাস্ত্র থেকেও প্রশ্ন এসে থাকে। তো এই টপিকগুলোকে বলতে পারি যে আসে হঠাৎ করে কোথা থেকে কোনটা দেওয়া যাবে সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদেরকে যেগুলো প্রিভিয়াসের জিজ্ঞেস করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে একটু জেনে রাখতে হবে, এটাই। তো বাকি যে চারজন এনারা যেখানে আছেন, এনাদের অন্যান্য লেখাগুলো যদি আমরা জেনে রাখতে পারি তাহলে অবশ্যই সুবিধা হবে। নেক্সট আমরা আসছি কোয়েশ্চেন নম্বর 81। ডিউ রেখেছি 81 লেখা আছে, ইউ ক্যান সি 81 ডিউ রেখেছি। 82 থেকে আবারও চারজন ব্যক্তিদের নাম এবং ওনারা কোন ভাষায় লেখেন এবং কোন ভাষা ওনারা জানেন এই বিষয়। তো ম্যাচ করতে হবে কোন। তো লাল সিং দিল সিং টাইটেলটা নিয়ে একটা যদি আমরা না জেনে থাকলে গেস ওয়ার্ক দিতে পারি, সেটা পাঞ্জাব। উর্মিলা পাওয়ার মারাঠি, তুলসিরাম হিন্দি, আর দেবরুণ মহাদেব কানাড়া। নেক্সট আসছি দ্য আইডলস অফ দ্য কিং, রিটেন বাই, এটা টেক্সট আর তার রাইটারদের নাম। আইডলস অফ দ্য কিং ডেফিনেটলি আলফ্রেড লর্ড টেনিসন, আর এটা 1842 থেকে 1888 মধ্যে লেখা হয়েছে, ইন বিটুইন। তো আমি নিয়ে এসেছি কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন। ড্রামাটিক লিরিক্স ডেফিনেটলি বাই রবার্ট ব্রাউনিং, আর এটা 1842-তে লেখা হয় অ্যাজ দ্য থার্ড ভলিউম ইন আ সিরিজ অফ সেলফ পাবলিশড বুক, এইভাবে নিয়ে আসা হয়। সনেটস ফ্রম দ্য পর্তুগিজ এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, 1845 থেকে 1846 লেখা হয়, ফাইনালি পাবলিশ করা হয় 1850-এ। ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হয়েছে বলে আমি নিয়ে এসেছি। আর নেক্সট থাকছে পোমস অ্যান্ড ব্যালাডস, দ্যাট ইজ হচ্ছে অ্যালজার্নন চার্লস সুইনবার্ন, শর্ট ফর্ম AC সুইনবার্ন, আর 1866 খ্রিস্টাব্দে পাবলিশ হয়। এটা লেসবিয়ানিজম, সাদো মাসোচিজম অ্যান্ড অ্যান্টিথিজম। এই লেসবিয়ানিজমটা আমি জানি, কিন্তু এই সাদো মাসোচিজম অ্যান্ড অ্যান্টিথিজম আমার জানি। এগুলো নিয়ে আলাদা করে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে, পড়তে হবে। তো আজকে 3টে প্রশ্নই থাকছে, যেহেতু তোমাদের আমি বলেই দিয়েছি যে একটু তাড়া আছে আমার। তো আজকে 3টে প্রশ্ন থাকছে, আর পরবর্তীতে আমি এখানে বলে দিচ্ছি, ঘোষণা করে দিচ্ছি যে 1 মিনিটের শর্ট ভিডিও নিয়ে আসবো। মানে আমি 1 মিনিটের মধ্যে একটা করে কোয়েশ্চেন সলভ করাবো 2-3 দিনের জন্য, মিনিমাম 2 থেকে 3 দিনের জন্য, তার বেশি নয়। তারপর আবার এইভাবে লং ভিডিওই কন্টিনিউ করবো, এর থেকে বেশি বেশি প্রশ্নই সলভ করবো। তো হচ্ছে তার জন্য কী করতে হবে, এসবি লিটারেচারকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে হবে, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখতে হবে। তো এখন আমি হিন্দিতে বলে ভিডিওটাকে এন্ড করছি। अभी मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ। अगर आपको अगेन कहूँगी दोनों लैंग्वेज पता है तो दोनों में देखिए, रिपीट और रिवीजन यहाँ पे ही हो जाएंगे। अगर एक लैंग्वेज पता है तो एक ही लैंग्वेज फॉलो कीजिए जो आपको पता है। और इंग्लिश में नहीं बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई है इंग्लिश में, तो अगर आप इंग्लिश के हो तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन एंड कहना है मैं तो कहती ही रहती हूँ। 80 क्वेश्चन के ऑप्शन ए है श्याम एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द भगवता बाई, ये टेक्स्ट है और ये राइटर के ऑथर के नेम है, राइटर के नेम है, तो मैच करनी है, मैच द फॉलोइंग। भगवत गीता, सॉरी नॉट भगवत गीता, श्याम एन इलस्ट्रेटेड डिटेलिंग ऑफ द भगवत बाय देवदत्त पटनायक। वॉर ऑफ लंका, इट इज वॉर WAR बाय अमिश त्रिपाठी। Ahalya's Awakening by Kavita Kane, Kane. Ajaya, Epic of the Kaurava Clan by Anand Nilakanthan. Okay, Anand Nilakanthan.
तो एखाने यहाँ पे मुझे यही कहनी है कि ये आप थोड़ा गूगल करके रख सकते हो ये चारों राइटर के बारे में। और ये जो जॉनरा है मिथोलॉजिकल है, मिथ के ऊपर बेस है ये चारों लिखा। तो आप कुछ लोगों को पता ही है कि एक हमें नाट्यशास्त्र ऐसे मैथोलॉजिकल और भी ऐसे आते हैं जो हमें नहीं पता, रैंडमली पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन चारों का अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो तो पढ़ सकते हो खुद से गूगल करके इन चारों राइटर के बारे में। आपके ऊपर कोई मैं नहीं कहूँगी करनी ही पड़ेगी, लेकिन करोगे तो आप ही एडवांटेज एंड बेनिफिट में रहोगे। 81 नंबर ड्यू, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है तो हमें अब 82 पे ये जो राइटर है इनके मदर टंग ये किस भाषा में लिखते हैं ऐसे, तो ऑब्वियसली मदर टंग से ही लोग ज़्यादा लिखते हैं। बाय द वे लाल सिंह दिल, अगर आपको नहीं पता तब अब सिंह देखकर मैं तो एक गेस लगा लेती पंजाब। उर्मिला पवार मराठी, जो कि आप लोगों को पता है। यहाँ से एक याद आया, मैं बंगाली में बोलना भूल गई। दलित लिटरेचर के 34 राइटर मेरे कवर है। तो आप लोगों को अगर दलित राइटर के क्रोनोलॉजी एंड उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स वो आपको डिटेल में मिल जाएंगे। आपको सर्च करना पड़ेगा दलित राइटिंग्स फ्रॉम एसपी लिटरेचर, आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। वो देखेंगे तो आपके लिए हम कह सकते हैं सफिशिएंट, मोर देन इनफ है, और तो आपको हेल्प होंगे ज़रूर। और तुलसीराम हिंदी एंड देवरुण महादेव कन्नड़ा। ऐसे एक भी क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन किस, मतलब ये कभी कभी जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर और माइथोलॉजिकल टॉपिक वहाँ से भी पूछे जाते हैं। कभी कभी जो नाट्यशास्त्र वो भी कभी कभी कुछ एंशियंट पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक के भी पूछे जाते हैं रैंडमली। सो ये जिन सारी जो टॉपिक आपको बता रही हूँ ये सब आपको प्री प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछे जा सकते हैं रैंडमली। इसके लिए आप प्रिपेयर खुद से ये सारी चीज़ें पढ़ के जाओ, लेकिन आपको नहीं पता कि कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये एक दो क्वेश्चन ऐसे तो रहती ही है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, द आइडल्स ऑफ द किंग, मतलब टेक्स्ट एंड राइटर के नेम। आइडल्स ऑफ द किंग डेफिनेटली बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके आई ताकि आपकी हेल्प हो। 1842 से 1888 के बीच में लिखी गई है। ड्रामेटिक लिरिक्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये 1842 में लिखी गई एज द थर्ड वॉल्यूम इन अ सीरीज ऑफ सेल्फ पब्लिश्ड बुक, ऐसे ये लिखे गए। सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये 1845 से लेकर 1846 तक लिखे गए और फाइनली पब्लिश्ड हुए 1850 में 1850 में। नेक्स्ट पोम्स एंड बैलेट्स बाय एल्जर्नन चार्ल्स स्विनबर्न। फुल नेम सुन के मुझे ये लगा कि कौन है, लेकिन नहीं, एसी स्विनबर्न, जो कि हम बहुत ही परिचित है इनके नाम के साथ इंग्लिश लिटरेचर में, और ये पब्लिश्ड हुए 1866 में। ये जो बात करें इसके जो मेन थीम रहते हैं वो कि लेस्बियनिज्म, सदो मसोचिज्म एंड एंटीथीज्म। मुझे लेस्बियनिज्म पता है, लेकिन सदो मसोचिज्म एंड एंटीथीज्म मुझे नहीं पता। ये अगर आप कहोगे तो बाद में मैं कंसेप्चुअली लेकर आऊँगी, इसके लिए पढ़ाई करके टाइम लेकर लाना होगा। आज मैं ये 3 क्वेश्चन से कवर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं थोड़ी बिजी हूँ। और नेक्स्ट पे प्लीज़ अब मुझे एक बात बोलनी है, मैं हिंदी में बोल के फिर बंगाली में रिपीट कर रही हूँ। शॉर्ट सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। अगर मैं 2-3 या उससे ज़्यादा शॉर्ट सीरीज दे रही हूँ, वहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। अगर उससे एक तो है कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन सीरीज़ के एक क्वेश्चन डेली 2-3-4 दिन के लिए शेयर करूँगी, और एक है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ के कुछ आपको वहाँ के कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, हो सकते हैं दोनों में से एक करूँगी। तो आप शॉर्ट वीडियो को भी प्लीज़ देखिएगा, ये जो 2-4 दिन मैं बिजी रहूँगी, आपको ये हेल्प होगा। ওকে, পড়াই के साथ और भी चीज़ें भी बहुत ইম্পর্টেন্ট হতে হয়। আমার এটাই বলার ছিল যে আমি এই 2 থেকে 4 দিন যে শর্ট ভিডিও দেবো সেখানে একটা করে প্রিভিয়াস যে কোয়েশ্চেন এই রিলেটেডই নিয়েও আলোচনা করতে পারি, সেটাও মিস হয়ে গেলে অসুবিধা হবে, তাই দেখতেই হবে শর্ট ভিডিও। আবার এরকমও হতে পারে আমি যেখানে যাচ্ছি, যে বিষয়ের জন্য যাচ্ছি সেটা নিয়েও তোমাদের সাথে বা আপনাদের সাথে কথা বলতে পারি। সেটা তো পড়াশোনার সাথে আদার্স জিনিসও ইম্পর্টেন্ট, যেটাই দেখবে অবশ্যই তোমাদের হেল্পই করবে, কোনো কিছু সময় নষ্ট তো হবে না, এটুকু বলতে পারি। তো ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত। নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবই को नमस्ते। अब यही तक की आज करेंगे हम। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। अगेन आई एम सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइजेस। बच्चे खेल रहे हैं तो फिर গার্জিয়ান ধমক रहे हैं। আমি দুঃখিত যে পাশের শব্দের জন্য, কারণ প্রত্যেকের পরিবারে এগুলো হয় আর মানুষের জীবনে এগুলো খুব কমন। এটা নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার বা নিজেকে কোনো কিছু ভাবার কোনো মানে হয় না, इट्स नेचुरल। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। खुद खुश रहिए,
दूसरों को खुशियाँ बांटते रहिए, নিজে ভালো থেকো, অপরকে ভালো রাখো, মন খুলে হাসো, মন খুলে কথা বলো, মন খুলে পড়াশোনা করো, মন খুলে যাই করো, মন খুলে করো, মনের মধ্যে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব কোনো কিছু রাখার দরকার নেই, কোনো রকম ক্লেশ গ্লানি ঘৃণা কিছু রাখার দরকার নেই। এগুলো সরিয়ে দিতে পারলে নিজে আরও ভালো থাকা যাবে, সুস্থ থাকা যাবে, আরও এগিয়ে যাওয়া যাবে। ওকে, ঠিক আছে, নমস্কার, ভালো থেকো, গুড নাইট।